Okay, good noon to all of you. This is Vipul, and we are discussing our second unit from the probability and statistic. And in the last session, we are done with the theoretical part of normal distribution, and I had explained how to deal with the normal table, how to identify the probability related to standard normal variate Z using that particular normal table, which is visible on your screen right now. I had discussed 3-4 different cases where I had taken Z positive, Z in the positive part, Z in the negative part, even two different values of Z, one of the positive, one of the negative, both are positive, both are negative. We had discussed all that cases with suitable number of examples. Now, in this particular session, I will be continuing from official examples related to normal distribution. Now, these examples are divided into two parts. Is it? For the first part, we will be dealing with examples related to standard normal variate. And once we are good with the examples related to standard normal variate, then we will switch over to the examples related to the normal variate. Let me make you clear about standard normal variate is Z, normal variate is X. We are having one of the transformation formula, one of the relation between Z and X, that is Z equals to X minus mu divided by sigma, where mu is mean, sigma is standard deviation. Is it? So let's go for the examples related to standard normal variate first, and then we will be switch over to the normal variate. Okay, good. So this is a normal table which is visible on your screen, and hopefully you guys are having a hard copy of that particular with all of you, as I instructed in the previous session that we need the hard copy. We need this particular table in your hand, and then you guys will feel comfortable to identify one of the Z-score. Okay. Hopefully you are having that hard copy, having that printout. अगर नहीं है तो आज के लिए चला लीजिए सॉफ्ट कॉपी से, पर वो हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए. then you will able to deal with this table. Okay, वरना वो इतना आसान नहीं रहेगा, वो मजा नहीं आएगी. ठीक है. Let me go for the example. First we will start with the uses of normal distribution, that we will discuss later. Forget about that. Okay, examples of normal variate. That means I'm gonna talk about Z. Is it? We know that a normal variate. Let me choose my pen. Normal variate is X. Standard normal variate is Z. And first I'm gonna deal with the standard normal variate. That means the example which I'm gonna show you right now, that will be related to Z. Okay, and it will be clearly mentioned over the instruction also. What is the probability that a standard normal variate, observe that a standard normal variate Z will be greater than 1.09. Second sub question, less than or equals to minus 1.65. Third one is lying between both these -1 and 1.96, and lying between 1.25 and 2.75. Is it? So this is our question, and we will try to identify the value of Z. Probability of Z is lying in this particular interval. First, for the first question, I will try to identify that Z is greater than 1.95. That means Z is greater than 1.09. Second, that is less or equal. That is less or equal minus 1.65. First, let's try to evaluate both this. Now, once for this particular question, as it is mentioned over there, we are supposed to deal with the standard normal variate Z. We are not worried about any of the relation formula, because for the standard normal variate Z,
to identify the probability, we are having one of the table which is known as a normal table. उसी से बहुत आसानी से हम ये कर पाएंगे. So पहला जो है, we are looking for P is greater than, sorry, probability of Z is greater than 1.09. अब ये करना है. चलिए, this is our first question. Now, in this part, any of the example related to standard normal variate or normal variate, we will be giving one of the rough sketch for the normal curve. हर बार हर एक एग्जाम्पल में हम एक नॉर्मल कर्व का रफ स्केच ड्रॉ करेंगे. And pick is always z equals to 0, as we discussed in the previous session. This is z equals to 0. Now, और काफ़ी सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में है, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 99.74% डेटा विल बी ऑलवेज इन -3 to +3, इन बिटवीन -3 to +3. दैट मीन्स के -3 +3 के बीच में ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है. सो जहाँ पे वो कर्व है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास पहुंच गया है, वो कभी टच नहीं करने वाला है, नेवर गोना टच एक्स एक्सिस. पर जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब आ गया, वो दैट पॉइंट शुड बी 3. ऑन द अदर हैंड दैट पॉइंट शुड बी -3. द कर्व मस्ट बी बेल शेप कर्व, इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट z equals 0. ये सब हमको पता है. हमको पता है इस हाफ, इस पोर्शन में -3 से 0 में इसका एरिया होगा हाफ, इसे 0 से 3 में इसका एरिया होगा हाफ. ये सारी बातें हमको पता है. सो जब भी आप वो रफ स्केच ड्रॉ करें, जैसे मैंने बोला हर एक क्वेश्चन में हम रफ स्केच देंगे, उसको क्वेश्चन का पार्ट होगा ये, हर बार वो स्केच ड्रॉ करनी है आपको. जब रफली ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो फॉलो करनी है. वो क्या है? ये 3 आप यहाँ पे नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट राइट 3 ओवर हियर. अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो वो गलत है, वो लॉजिकली रॉन्ग है. इज इट? सो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, दैट पॉइंट शुड बी 3, दिस पॉइंट शुड बी -3, और according to that we will choose our other figure. Now observe 1.09. if I wish to represent 1.09 over this particular part, तो पहले तो ये पॉजिटिव है तो इस पार्ट में आएगा. अब approximately this distance is 3, तो 1.09 I can represent something around here. Suppose this is 1.09. So randomly ड्रॉ करना है. We are not supposed to use proper scale. कोई स्केल लेके नहीं ड्रॉ करना है. ठीक है, रफ स्केच है, पर अगर रफ स्केच है तो भी उसमें कुछ मेजर्स तो फॉलो होने चाहिए. अगर 3 यहाँ है तो अगर आप 1.9 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो गलत ही है, आप देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज माय z equals to 1.09 approximately over here. This is not suitable. Let me draw it once again. See? This is my z equals to 1.09. Now what I am finding, I am looking for probability that z is greater than 1.09. That z is greater than 1.09. That means I am looking for this particular probability. I am interested in this particular region. 1.09 से बड़ी कोई भी वैल्यू. That means 1.09 to infinite, to positive infinite. Now, what a table gives us? हमारा जो नॉर्मल टेबल है वो हमको क्या देता है? वो 0 से लेके z की वैल्यू देता है. 0 से कोई एक पॉजिटिव नंबर की वैल्यू देता है. वो पॉजिटिव नंबर से इनफाइनाइट नहीं दे रहा है हमको. Then how we will solve this? I will convert this particular in the way, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा. If we are interested to find this particular region, तो हम क्या करेंगे? हमको पता है कि ये जो पूरा 0 से इनफाइनाइट वाला पार्ट है, that is 1/2. The area of this particular half is 0.5. हम 0.5 में से अगर ये रीजन निकाल देना, जिसके ऊपर मैं अभी डॉट शेडिंग दे रहा हूं, if I'm gonna subtract this particular portion from 0.5, then we will be rest with this, जिसके ऊपर मैंने येलो शेडिंग दी है. तो वही तो हमको चाहिए. तो इसके लिए हम फॉर्मूला अपनी तरीके से बनाएंगे. that is 0.5 minus probability that 0 is less than equals to z is less than equals to 1.09. Now we are comfortable with this. ये हमको टेबल दे सकता है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल जो मैंने आपको जो नॉर्मल टेबल दिया है वो आपको कौन सी वैल्यू दे रहा है? आपको पता है कि वो दे रहा है आपको 0 से लेके z की कोई एक रैंडम वैल्यू, पॉजिटिव पार्ट.
इज इट? इतना ही पोर्शन आपको दे रहा है. That particular portion is that in the normal table. Okay, so 0 से 1.09, z is lying between 0 से 1.09, वो हम टेबल से फाइंड कर सकते हैं. अगर उसको 0.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दे, then we'll be left with this particular part जो कि हमको चाहिए अभी. ठीक है. Now let's try to identify. क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? Let me know over the chat box. Let me know over the chat box quickly. Am I clear with this? Am I clear with this? Drop a message over the chat box, all of you. सभी को ये बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है. चलो. So z equals to 0 से. So can you repeat YB to Sir Bharti here? So can you repeat YB to 0.5? Sorry. YB. Sir YB to 0.5. Bharti, you were present in the last session, yes or no? Yes sir. Good. क्या आपको पता है नॉर्मल कर्व जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट z equals to 0? Yes sir. Are you clear about this? Good. Yes sir. तो देख, नॉर्मल कर्व है वो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, और इन दोनों का एडिशन माने कि 1 टोटल एरिया 1 होगा, ये पता है आपको. ठीक है. अब Yes sir. जो why we are modifying a formula like this, is it? Might be this is your question कि ये मैं अपनी फॉर्मूला इस तरीके से मॉडिफाई क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है? Yes. Why Yes I'm sir. writing 0.5 minus this thing, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमको? अब मैं तुझे लेके जा रहा हूँ, रुक जा, एक वो नॉर्मल टेबल वाली स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, रुक जा. यस, दिस इज अ स्लाइड, दिस इज अ नॉर्मल टेबल, और इसमें मैंने क्या दिया है देख, ये इसको एक बार ऑब्जर्व कर. ये कौन कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है बेटा? दिस वैल्यूज आर दैट probability that 0 is less than equals to z is less than equals to some of the value. Let me denote it as a z1. If this is z1, तो ये जो 0 से z1 के बीच में जो z वैल्यू ले रहा है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे देगा. मुझे क्या चाहिए अभी? जो क्वेश्चन में था वो हमको इस पोर्शन की वैल्यू चाहिए. आई नीड अ प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन कि कोई एक z की कोई एक रैंडम वैल्यू वहां से इनफाइनाइट तक. पर टेबल तो ये नहीं दे रहा है. टेबल तो मुझे क्या दे रहा है? 0 से z1 दे रहा है. टेबल से मैं सिर्फ 0 से z1 फाइंड कर सकता हूं, मैं z1 से इनफाइनाइट टेबल से फाइंड नहीं कर सकता. तो मैं क्या करूंगा? तुझे इतना पता है कि ये पूरा एरिया जहां पे मैं आउटलाइन दे रहा हूं, देख, ये पूरा एरिया 1/2 है, ये तुझे पता है. Yes sir. Yes sir. 1/2 मानी के 0.5. अगर तू उसमें से ये निकाल दे, ये कर सकती है ना तू टेबल से, ये तू टेबल से फाइंड कर सकती है. अगर 0.5 में से तू इतना निकाल दे तो यही बचेगा ना. यस और नो? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. हर बार ऐसा ही करेंगे हम. सो दिस इज क्वाइट क्रूशियल. ध्यान में रख. समझ में आया तुझे? हाँ सर. पक्का? Yes sir. Good. So let me continue with that. Okay. So might be this is clear why I am using this particular formula 0.5 minus probability that 0 is less than z is less than 1.09. Is it? अब चलिए, इसके पास वो हार्ड कॉपी है अभी. कितने लोगों ने वो हार्ड कॉपी निकाली है नॉर्मल टेबल की? निकाली है नहीं निकाली है बताओ. किसी ने निकाली है तो बताओ. मेघना तूने निकाली है, ठीक है. चल मेघना बता मुझे, 0 is less than z is less than 1.09, that means के z स्कोर बता मुझे 1.09 का, जल्दी से. Sir 0.3621. 0.3621. देखिए मेघना ने बताया. let us verify कि क्या वो सही है. 1.09 मुझे चाहिए. 1.09. देखिए 1.0 will be here. Let me resolve the ink from this particular. Let me pick my pen. 1.09 चाहिए तो 1.0 will be here. 0.09 में यहाँ से ले रहा हूँ. इन दोनों का इंटरसेक्शन जो भी है, yes, this will be the intersection, that is 0.3621. So that will be the probability that 0 is less than z is less than 1.09. That is nothing but 0.3621. वही मैंने यूज किया. देखिए यहाँ पे. Yes, here it is. So I need to subtract that from 0.5. वो जो भी आ रहा है 0.5 minus 3, 0.3621 जो भी आएगा 1.13 blah blah blah. That will be answer for the first part. That
probably that z will be greater than 1.09. Now let me show it properly कि कैसे मैं आप कैसे लिख सकते हैं ये एक बार चाहिए. This is the way you are supposed to write down. देखिए क्या ये समझ में आ रहा है हर किसी को? Are we good with this or not? Let me know. आई बात समझ में हर किसी को कि नहीं आ रही है? Okay, got it, sir. Good. Now, what is the second question? What is the second one? Now I will pick one of the random person from you, from the audience, okay? Probability that z is less than or equals to 1.65. Okay, ये second में जाने से पहले एक और बात मैं कर दूं. अगर यहाँ पे लिखा होता, देखना, यहाँ पे strictly greater than था, is it ना? We were dealing with the strictly greater than. पर अगर यहाँ पे लिखा होता greater than or equal to 1.09, greater than or equals to 1.09, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर यही आता 0.1379. क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि वी आर डीलिंग विद द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अगर आप फाइंड कर रहे हो कि z इक्वल्स टू कोई एक फिक्स वैल्यू कि 1.39, z is literally equals to 1.39, कि probability that z is equals to 2.05, exactly कोई एक वैल्यू ले रहे हो आप, तो हर बार वो बहुत ही छोटी आएगी 0.00000000784 like that. वो बहुत ही छोटा नंबर आएगा. So that will not make any difference कि whether I am including 1.09 or not. So पूरे चैप्टर में, पूरे इस पार्ट में कहीं पे लिखा है कि z is greater than 1.09 और greater than or equals to 1.09. उन दोनों के लिए हमारा अप्रोच सेम ही रहेगा. gonna consider that equal. वो इक्वल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो कहीं पे ग्रेटर देन है, कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, कहीं पे लेस देन है या लेस देन इक्वल्स टू है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. लेस देन इक्वल्स टू विल बी ट्रीटेड एज द सेम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू विल बी ट्रीटेड एज द सेम. क्योंकि अगर कोई मुझे पूछे, क्यों, इसका भी रीजन है. देखिए आप, अगर कोई मुझे पूछे कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज एग्जैक्टली 0.5, 0.5, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे एग्जैक्टली 0.5 है, एग्जैक्टली 0.5 हो z, उसकी वैल्यू क्या होगी? मानिए कि एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, इस लाइन का एरिया वो पूछ रहे हैं. अब लाइन का एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर. आई एम जस्ट सपोज टू टेक दिस पर्टिकुलर लाइन और उसका एरिया निकालना है तो बहुत ही छोटा होगा. इट विल बी 0.000 समथिंग. सो दैट इज द रीजन स्ट्रिक्टली लेस देन or less than or equals to another case greater than equals to will be considered as the same. Okay. Now let me go for the second question. ये बात डिस्कस करनी बहुत ही जरूरी थी तो अभी कर दी मैंने ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. Now what is second? Second, we are looking for probability that z is less than or equals to z is less than or equals to 1.65 minus negative 1.65. अब जैसे मैंने बोला कि स्केच हर बार ड्रॉ करना है, तो चलिए स्केच ड्रॉ करते हैं. स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, standard normal curve z, this is standard normal curve, this is my mean z equals to 0, this is z equals to 0. ये पता है हमको -3 हो सकता है, यहाँ पे +3 हो सकता है जो कि पिक है उसका, जो कि उसका एंड है. अब this is -3, this is 0, तो -1.65 आप चूज कर सकते हैं approximately something around here. This is -1.65. अब देखेंगे हम what we are looking, z -1.65 से छोटा हो, मानी कि वी आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पोर्शन. ऑब्जर्व, ये हमको चाहिए. हाँ या ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को? एम आई क्लियर विद द क्वेश्चन? आर वी गुड? आर वी गुड? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बोलते रहिए, बात करते रहिए चैट बॉक्स में या तो फिर मुझसे अनम्यूट करके बात कीजिए. आर वी गुड विद दिस? Yes, sir. Good, good.
अब क्या हमारा टेबल हमको नेगेटिव पार्ट की प्रोबेबिलिटी दे रहा है? नहीं दे रहा है, नेगेटिव तो हो, उसमें मैंने इंक्लूड ही नहीं किया है वो नॉर्मल टेबल में। तो इसको कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? इसके 2-3 क्वेश्चन हमने लिए थे लास्ट लेक्चर में, हाउ टू डील विद दिस, इसको कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर वो z इज 0 पे सिमेट्रिक है बोथ साइड, तो वो 1.65 से ग्रेटर देन होगा उतना एरिया आएगा। यस। अब इसकी मिरर इमेज में बना लूं, ये पार्ट अगर मेरे पास ये पार्ट नहीं है तो ये पार्ट तो है, इसकी मिरर इमेज बना लूं मैं यहाँ पे कि सपोज दिस इज z इक्वल्स टू 1.65। अगर ये फाइंड कर लूं मैं, जिसके ऊपर मैं अभी सेटिंग दे रहा हूँ रेड कलर की, इसका जितना एरिया होगा उतना एरिया इसका होगा, बोथ दिस विल बी सेम, डिटो सेम, इज इट? तो ये नहीं कर सकते हम, Yes. ये तो कर सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ। दिस इज लिटिल इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर Greater देन than 1.65। अब किसी को ये लगे कि सर 65. ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखिए या फिर ग्रेटर देन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ग्रेटर देन लिख रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख रहे हैं, बोथ आर सेम। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो अब सेम ही हो गए, है या ना? यहाँ पे सिर्फ 1.09 था, अब यहाँ पे 1.65 है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? भारती अब बता, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 इज लेस देन z इज लेस देन इक्वल्स टू 1.65, इज इट? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, क्योंकि ये पूरा एरिया नहीं है, ये हमको ये पता है कि ये पूरा एरिया 0.5 है, उसमें से अगर ये मैं निकाल दूं तो आई विल बी रेस्ट विद दिस पर्टिकुलर 1.65 से इनफाइनाइट तक, ठीक है? सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग दैट पर्टिकुलर फ्रॉम 0.5, उसको 0.5 में से बाहर निकाल दो, जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। लेट मी शो यू कैसे करना है। दिस विल बी द वे। अभी क्लियर? अब कोई ये फर्स्ट ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट वरीड अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। 1 माइनस लिखना जरूरी नहीं है, छोड़ दो उसको, सिर्फ यहां से देखिए आप। दिस गुड। मैंने क्या किया, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना ली, और इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर फाइंडिंग दिस वन, इसको फाइंड कर रहे हैं, एंड श्योरली दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी 1.65, और उसको 0.5 में से ये जो पूरा एरिया है दैट इज 0.5, और इसमें से इतना मैं निकाल दूं तो जो बचेगा दैट विल बी दिस। वही मैंने किया, 0.5 माइनस ये साइडिंग वाला एरिया है दैट इज 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.65, इसको फाइंड करके निकाल दिया, तो जो बचा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.65। क्लियर? गुड। नाउ द थर्ड वन। This is the graph. We're finding that z is lying between -1 and 1.96. कौन हेल्प करेगा? चलिए, I'm giving you just 1 minute. कौन हेल्प करेगा मुझे ये फाइंड करने के लिए? I need one of the help from your side. चलिए जल्दी से, who will help me for this? I'm waiting, guys. सर पहले 0 से 1 का, उसके बाद फिर अगेन 0 to 1.96, क्योंकि वो मिरर इमेज ही होगी। देखिए पहली बात तो ये है कि इसको अगर आप देखें तो दो पार्ट मिल रहे हैं, -1 से 0, 0 से 1.96। तो आप ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट -1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.96। मैंने क्या किया, दो पार्ट कर दिए, एक फर्स्ट सेकेंड। अब ये तो मिल जाएगा नॉर्मल टेबल से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई पॉजिटिव वैल्यू, ये नॉर्मल टेबल मुझे देगा ही देगा, पर ये नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 से 0 अगर मुझे फाइंड करना है तो -1 से 0 नॉर्मल टेबल से नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके का नॉर्मल टेबल मैंने आपको दिया है उसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो उसका उस इनइक्वालिटी का एक एंड पॉइंट 0 ही होना चाहिए तभी मिलेगा। पर अगर -1 से 0 नहीं मिल रहा है तो हमको 0 से 1 तो पता ही होगा, एंड वी नो दैट दिस कर्व इज लिटिल सिमेट्रिक, तो जितना -1 से 0 के बीच में होगा उतना ही 0 से
1 के बीच में भी होगा. So this will be the formula we'll be dealing with. आपको क्या करना होगा, 0 से 1 फाइंड कीजिए एक बार. दैट मीन्स नॉर्मल टेबल में 1.00 देखिए एक बार, नॉर्मल टेबल में 1.96 देखिए, दोनों को ऐड कर दिए. चलिए मेघना आप बताइए बेटा, 0 से 1 नॉर्मल टेबल में 0 से 1 कितना आ रहा है? 1.00 देखिए. 0.3413. 0.3413. 3413 इसका डबल कर दे एक बार. और 0 से 0.3413. 1.9. एक बार कुछ और बताऊं मुझे तो. 6286 0 पॉइंट मानी कि 68.26% डेटा. ये पता है तुझे -1 से +1 के बीच में 68.26% हाँ सर. डेटा होता है. दैट मीन्स व्हाट, 0 से 1 के बीच में कितना होगा? हाँ सर. हाँ. 34.13% होगा. देख वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही है देख. यस सर. गेट. एंड प्लस 1.96 की वैल्यू क्या आ रही है ये भी बता दे मेघना. सर 0.4750. 0.4750. Good. And 50. addition of both this will be 3, 6, 1 and 8. 0.8136 will be the answer for the third question. Are we clear with this? Are we good? Are we clear? Nidhi, Yash, Sushil, Yes, sir. Janvi, Yes, sir. Clear. Jai, Priyank, Shivam. Hopefully we guys are good. Okay. तो चलिए लास्ट वाला कौन करके देगा मुझे? द लास्ट वन. दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड का, पर थर्ड का दिखाई दूं. चलो ये रहा. नाउ हु विल हेल्प मी फॉर द फोर्थ वन? Fourth one I'm trying to find probably that p is between 1.25 and 2.75. चलिए ये कैसे करेंगे? सर इसमें वो पहले 0 से 2.75 में से फिर वो 0 to 1.25 सब करके. परफेक्ट. यस परफेक्ट. देख इसका अगर स्केच निकालूं तो ऐसा होगा. पक्की बात है. दिस विल बी द स्केच. 1.25 2.75 इसके बीच में ही मुझे चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, बीच वाला नहीं दे सकता मुझे नॉर्मल टेबल. तो मैं 0 से 2.75 निकालूंगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0 से 1.25 और बचेगा यही रीजन उसके बीच वाला. So that should be the answer. So first let me know whether all of you are clear with this 4 examples related to standard normal variate or not. ये क्या चारों एग्जांपल आपको समझ में आ रहे हैं ठीक से? हाँ ना? All of you will drop a message over the chat box. All of you, जितने भी लोग यहाँ पे drop a message over the chat box. Are we clear with this thing? ये चारों एग्जांपल से क्लियर है हम लोग? Then and then we will move forward. Good. Almost all of us are clear. So now, for the example one, we were dealing with the standard normal variate Z. अब क्वेश्चन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के होंगे ही नहीं. क्वेश्चन तो होंगे नॉर्मल वेरिएट के. Initially, we are supposed to deal with x, where x is my normal variate. अब अगर नॉर्मल वेरिएट के साथ काम करना है तो मुश्किल तो है हमको पता है, पर उसके लिए हमने रास्ता फाइंड कर लिया है. क्या? We had find one of the alternate way, that is, instead of dealing with x, it is quite convenient to deal with z. तो अगर क्वेश्चन x वाला है तो क्या करेंगे? चलिए दिखाता हूँ. नेक्स्ट एग्जांपल. नाउ ऑब्जर्व द कैप्शन, एग्जांपल ऑफ नॉर्मल वेरिएट. अगली स्लाइड में क्वेश्चन था एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. अब हम कर रहे हैं एग्जांपल ऑफ नॉर्मल वेरिएट. फर्स्ट क्वेश्चन. Read this instruction carefully. If x is normal variate, earlier it was standard normal variate z. अब जो है वो normal variate है. This is important. And we are dealing with x. इसका mean दिया हुआ है. Mean is 30. Standard deviation is 5. And what we are supposed to find? We are supposed to find that x is lying in one of the interval 26 to 40. And x is greater than 45. अब इस दोनों को फाइंड करना है, इन दोनों क्वेश्चन को फाइंड करना है. चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन.
X, my normal variate. अब ऑफिशियली क्या है? If they are asking probability that 26 is less than equals to x is less than equals to 40, and if we are having that information, my x is normal variate, तो ये इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए चाहिए मुझे एक इंटीग्रेशन which is running from 26 to 40, or the function that is 1 upon sigma under root 2 pi e to the power minus half x minus mu divided by sigma the whole square dx. ये करना पड़ेगा, पर ये तो हम करने नहीं वाले, हमने मना कर दिया कि भाई इतना बड़ा इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने एक रास्ता फाइंड किया हुआ है, वो क्या है? वी आर कन्वर्टिंग दिस x इनटू z। उसको हम z में लेके जा रहे, किससे लेके जा रहे? उसके लिए एक रिलेशन दैट इज x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब म्यू क्या होता है? म्यू होता है मीन, म्यू इज मीन, और मीन अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 30। सिग्मा क्या है? सिग्मा इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 5। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट दिस x in z, as well as I will convert this value of x when x is 26 तब z क्या आ रहा है, and when x is 40 तब z क्या आ रहा है, ये दोनों में फाइंड कर लूंगा। और मान लीजिए यहाँ पे x 20 है तो उसकी z की वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे z की वैल्यू 3 आ रही है। Then instead of finding 26 is less than x is less than 40, I will find 2 is less than equals to z is less than equals to 3। ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ, और वो सब कुछ होगा इस फॉर्मूला से z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात है। ठीक है, चलिए लेट मी इरेज दिस, क्योंकि ये ऐसा कुछ करने नहीं वाले हम, कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम, बहुत ही आसान होगा ये। देखिए रुक जाइए एक मिनट, लेट मी इरेज ऑल दिस फर्स्ट। यस, अब जो डेटा है मेरे पास, x जो है मेरा नॉर्मल वेरिएट है, मेरे पास मीन की वैल्यू है, मीन माने कि म्यू इज 30, and I'm having my standard deviation for the normal variate that is sigma, और standard deviation है 5। अब मुझे चाहिए probability that x is lying between 26 to 40। अब इसके लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा z में, तो उसका मतलब क्या है कि x जब 26 है तब z क्या है वो भी फाइंड करना है, x जब 40 है तब z क्या है वो भी फाइंड करना है। चलिए वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। when capital X is 26, when my x is 26 तब z क्या आएगा? उसकी फॉर्मूला ये है z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, उसी में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। z विल बी x is 26 minus mu is 30 divided by sigma is 5, so this will be minus 4 divided by 5, minus 4 divided by 5 माने कि minus 0.8, z is minus 0.8। if x is 26 तो z की वैल्यू है minus 0.8। देखिए ये होगा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वन मोर थिंग आई नीड टू फाइंड, व्हेन x is 40, जब x की वैल्यू 40 है तो z क्या होगा? if x is 40 and replacing that value over that formula, 40 minus 30 divided by 5 माने कि 10 divided by 5, that will be plus 2। so अगर x की वैल्यू 40 है तब z 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? if you are looking for probability that 26 is less than x is less than 40, it is literally equals to finding probability that minus 0.8 is less than equals to z is less than equals to 2। इसका मतलब तो यही हुआ। ये फाइंड करने से बेहतर है आप ये फाइंड कर लीजिए। अब माइनस 0.8 से 2 इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वो हमारा नॉर्मल कर्व फॉर्म करेंगे, एक स्केच बनाएंगे। यस हियर इट इज, यहाँ पे है z इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कहीं होगा माइनस 0.8 और यहाँ पे कहीं होगा z इक्वल्स टू 2, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2। So we are looking for z equals to minus 8 से z equals to 2, ये फाइंड करना है। This is a pick to identify this particular whole area. What we will do, we will divide that particular part into two ways.
इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? अभी ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, इसको हम डिवाइड करेंगे -8 -0.8 से 0 एंड प्लस probability that 0 is less than z is less than 2। अब -0.8 से 0 नहीं हो सकता तो उसकी मिरर इमेज ले लेंगे। 0 is less than z is less than 0.8, बहुत ही आसान है। प्लस वो ऐसे ही रहने दो, 0 is less than z is less than 2। अब ये दोनों नॉर्मल टेबल से बहुत आसानी से हो जाएंगे। 0.8 की वैल्यू जो भी है 0 पॉइंट समथिंग प्लस 0.2 की वैल्यू, सॉरी 0 से 2 की वैल्यू है जो भी है 75% जो भी कुछ है वो यहाँ पे रह सकता है। उन दोनों का एडिशन, दैट विल बी आंसर। दिस विल बी द वे, ऐसे हम सॉल्व करने वाले। लेट मी शो यू द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। नॉर्मल वेरिएट x है, मीन की वैल्यू 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, x जब 26 है तब z आ रहा है -0.8, जैसे मैंने अभी बताया x 40 है तो z 2 आ रहा है। दैट मीन्स वी आर लुकिंग फॉर बेस्ट प्रोबेबिलिटी, बट उसको हम कन्वर्ट करेंगे z में। z आएगा -8 से 2, और उसको अगर मैं लिखूं तो फाइनल आंसर विल बी 0.7653। एक बार देख लीजिए क्या ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। सर यस Got बेटा, ओके। यस को समझ में आ गया, निधि को समझ में आ गया, यस निधि दोनों को समझ में आ गया, बाकी को नहीं आ रहा है अभी तक। भारती समझ गई, दिव्या, मेघना इज क्लियर, कवदीप इज क्लियर, सुशील प्रसाद इज क्लियर, बाकी के सो रहे। शिवम को समझ में आ गया, ईशा को समझ में आ गया, गुड। हितेश, व्हाट अबाउट यू? प्रियंक, हितेश, जय, जानवी, हितेश को समझ में आ गया, अर्पित, प्रियंक, ओके। अरे ये सभी को समझ में आ गया, क्या बात है। चलिए तो फिर आप बताइए कि अगर मुझे ये फाइंड करना है probability that z is greater than 45 तो क्या करूंगा? सॉरी, x is greater than 45 तो क्या करूंगा? probability that x is greater than 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 45 के लिए मैं z फाइंड कर लूं। if x is 45 तो z क्या आएगा? z आएगा x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा 45 माइनस दिस इज 30 डिवाइड बाई 5, 15 डिवाइड बाई 5 माने कि 3, z की वैल्यू 3। अब x 45 तो z 3 माने कि इस प्रोबेबिलिटी का प्योर मतलब है कि z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब विदाउट यूजिंग टेबल कोई बताएगा z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 क्या होगा? टेबल से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, टेबल से अगर करना है तो आपको स्केच चाहिए। ये रहा स्केच, जैसे कि मैंने 3 बार अभी बताया। पॉजिटिव एंड पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस के पास में हो वो होता है 3, यहाँ पे होता है -3। तो मुझे क्या चाहिए अभी? 3 या 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। दैट z इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, 3 से बड़ी। इस एरिया का, इस रीजन का एरिया चाहिए मुझे अभी। कोई बता पाएगा क्या होगा वो? विदाउट यूजिंग टेबल कोई बता पाएगा? और कोई फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ही बता पाएगा? सुशील बता रहा है 0.5 माइनस 4987, एग्जैक्टली करेक्ट। इट विल बी 0.013। क्यों? देख, आपको पता है एक बात, -3 से 3 के बीच में कितना एरिया आता है? 99.74% डेटा, इज इट? माने कि 0 से 3 में कितना आएगा? इसका हाफ, वो कितना होगा? 49.74 का हाफ कितना निकलेगा? 37, 49.37%। दैट मीन्स के 3 से अगर इनफाइनाइट अगर मैं लूँ ना, 3 to इनफाइनाइट, तो इसको मुझे बस सब्ट्रैक्ट करना है 50% में से, तो वो होगा 0.13%। और 0.13% माने कि 0.0013। इतना आंसर ही आएगा। देखना, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर यही होगा 0.013। अब ये हमने लॉजिकली बताया। I had not used the normal table। नॉर्मल टेबल को यूज किए बिना ही हमने ये बता दिया कि ये हो सकता है। अब अगर नॉर्मल टेबल का यूज करो तो भी वही होगा। जैसे कि अभी सुशील ने जो फॉर्मूला लिखा है चैट बॉक्स में 0.5 माइनस, वही सही है।
वो भी सही है। उसने क्या फॉर्मूला दिया है, इसके लिए उसने फॉर्मूला दिया है कि इसको सर आप ऐसे लिखिए 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0 z इज लेस देन 3, और 0 से 3 अगर आप फाइंड कीजिए उस टेबल में तो वो आपको देगा 0.4987। सो 0.5 माइनस 0.4987, 0.4987 वो आपको वही वैल्यू देगा 0.0013, क्योंकि मेरा यहीं पे आंसर था। तो अगर ये क्वेश्चन मैं एमसीक्यू में डाल रहा हूँ कहीं पे, और आप में से कोई बंदा बोल रहा है कि सर ऐसा थोड़ी होता है, 1 मार्क्स में कोई नॉर्मल टेबल यूज करो, इतना स्केच बनाओ, 3 फॉर्मूला डालो, फिर आप बताओ कि भाई z की वैल्यू क्या है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0.03। अब ये तो 1 मिनट में नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर इफ यू गाइस आर क्लियर विद द कंसेप्ट तो ये तो बिना नॉर्मल टेबल के भी हो सकता है, और ये तो ज्यादा से ज्यादा आपका 20 मिनट लेगा, 20 सेकंड लेगा, सॉरी, उससे ज्यादा टाइम ही नहीं ले सकता। बट फॉर दैट यू मस्ट बी क्लियर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ रहा है तो 30 में से कम 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे रखने ही पड़ेंगे, तभी जाके आई कैन कैटेगराइज कि भाई कौन बंदा कितने पानी में, तभी पता चलेगा। मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं डाल सकता एग्जाम में कि चलो भाई हर कोई 10 सेकंड में कर रहा है। इज इट? सो आर वी गुड विद दिस? लेट मी शो यू द वे आप फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं एक बार। दिस इज द सॉल्यूशन, यू कैन ऑफिशियली मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक बार, नहीं समझ में आ रहा है बताइए मुझे, समझ में आ रहा है तो भी बताइए। Hopefully we are good. Is it? Good. Got it. So this was a basic question related to normal variate. अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट था नहीं, हमारे पास नॉर्मल वेरिएट था, उसको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में। देखिए हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू थी, उसको हमने z में ट्रांसफर की। अब z में हो गया ट्रांसफर तो बात खत्म है, तब तो हम कर सकते हैं। And now let me go for one of the word problem. Let me give you one of the word problem. This is the word problem for you. A manufacturer knows from his experience, from his historical data or the past experience, that the resistance of resistors he produce, वो resistors बना रहा है, उसका resistance जो है it is normally distributed, is normal। देखिए यहाँ पे is normal, let me pick my highlighter, yes, is normal। उस resistors का resistance जो है वो normal है, वो दिया हुआ है, और उसका मीन है कुछ, मीन इज 100 ओहम, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 ओहम। दिस इज द डेटा वी आर हैविंग। इस डेटा में बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है कि वी आर डीलिंग विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी डेटा हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका मीन क्या है वो भी हमको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। नाउ व्हाट दे आर फाइंडिंग, what percentage of, not probability, what percentage of resistors will have resistance between 98 ohms and 102 ohm। That means both these are the values of x, ये दोनों x की वैल्यू दी हुई है। They are looking for probability that 98 is less than equals to x is less than equals to 102। This is what we are supposed to find here in this particular question। So I'm giving you 3 minutes, 3 to 4 minutes. You are having normal table, you are having all the concept, and your time starts now. You are having 3 to 4 minutes. Kindly go for it. Try to solve the question. Try to convert this particular both the x into z. उसको z में तब्दील कीजिए, फिर z में एक प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, वो आप नॉर्मल टेबल से करेंगे, and then we will be discussing after 3 to 4 minutes. Okay, so your time starts now। मेघना अभी आंसर मत डाल बेटा चैट बॉक्स में, ठीक है? अभी लिख दिया तो कोई बात नहीं।
I'll be picking a random person from the audience for the solution of this. चलिए, कौन हेल्प करेगा मुझे? Who will help me to solve this question? Who will help me to solve this question? Any of you? Unmute yourself and try to talk with me. If I'm supposed to pick a person randomly. Nidhi? Yes, Nidhi, can you unmute yourself? Nidhi? Can you unmute yourself, beta? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Nidhi, you're audible now. Hello. Yes, Nidhi, you're audible now. Let's try to Hello. solve. Yes, you're audible. Am I So audible? what we are trying to find, we are trying to find probably that 98 is less than equals to x is less than 1.02. तो पहले तो 98 के लिए z चाहिए, 102 के लिए z चाहिए, ठीक है? मीन क्या है हमारे पास? Yes, sir. 98. Standard deviation. Oh, 100, Standard sorry. deviation is 2. When x 2. equals to 98, तब जाके हम z फाइंड करते हैं. चलिए z क्या होगा बेटा? So 98 minus minus 100. 2. कितना होगा बेटा? Sir, minus 1. Good.
and if x equals to 102, तब z होगा मेरा 102 minus 100 divide by 2, मानी कि 1. +1, मानी कि इसका मतलब क्या हुआ? To find the probability that probability that 98 is less than equals to x is less than equals to 1.2 is literally equals to -1 is less than z is less than 1. Yes or no? Yes, sir. तो ये तो नॉर्मल टेबल की जरूरत भी नहीं है, हमको पता है -1 से +1 में कितना डेटा आता है 68.26% डेटा, इज इट? तो अगर Yes, sir. टेबल में आप देखोगे तो ये 0.6826 आएगा, पर टेबल में ये वैल्यू नहीं होगी. To identify this particular, you need to divide this particular into two part. कैसे करेंगे आप? Probably that -1 is less than z is less than 0 plus Plus. probably that 0 is less than z is less than +1, is it? Yes, sir. अब ये होगा, पर ये नहीं होगा टेबल में. पर -1 से 0 में जितना होगा उतना ही 0 में 1 में होगा. तो what I can do, I can double this. इसको भी 0 से 1 लिख सकता हूँ और वो भी 0 से 1 ही है. That means it is 2 times probably that 0 is less than z is less than 1. और वो अगर आप टेबल में से निकाल के देखिए, it will be 0.3 something around that. 3413. 3413, yes, correct. और डबल हो जाएगा 0.6826. 26. और वो आप बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैंने बोला हुआ है 68.26% डेटा will be always there in -1 से +1, is it? In the interval Yes. -1 से +1. So ये हमारा आंसर नहीं. देखिए 0.6826 is not the answer. We are looking for the what percentage. Is it? This is probability. So if we need to give answer for the percentage, then the answer will be 68.26% resistors will have the resistance between 98 and 102 ohm. Is it? Thank you, Nidhi. Let me show the proper solution. This is the solution. बहुत ही आसान है, is it? It is very very easy. तो देखिए नॉर्मल जो है बाइनोमियल पॉइजन से भी आसान हो रहा है अभी. Once we are clear with the concept, once we are clear with the fundamental. Good. So let me give you one more question. Yes, this is for you once again. And अब निधि नहीं आंसर देगी, कोई एक पर्सन और मैं चूज करूंगा. Once go through the example. And once again, your time starts now. I'm giving you 3 minutes. मेघना बहुत जल्दी जल्दी कर रही है.
Meghna is done with the question. Any other? What about the rest of student? What about the rest of students? निधि से डन. निधि और मेघना दो ही कर रहे. यश, सुशील, शिवम, प्रियंक, जय. जय तुझसे बात करूंगा मैं. जय दक्कन. जय दक्कन तारी સાથે વાત થશે બેટા આ ક્વેશ્ચન માટે. જય, જાનવી, ईशा, दिव्य, भवदीप. भवदीप क्यों नहीं बोल रहा आज कुछ? Bharti is even done. Yes is also done. Jay, be ready. You are going to give the solution of this particular question. Okay. What about Shivam and Sushil? Shivam, Sushil, Priyank, ईशा, दिव्य, भवदीप. सुशील का हो गया. भवदीप कहाँ पे है? अर्पित, आदित्य. ओके, प्रियंक कर रहा है अभी. आदित्य, अर्पित. आदित्य, अर्पित. सर ओके. ओके ओके, वेटिंग. अर्पित, आदित्य दोनों कर रहे हैं. वेट कर रहा हूँ मैं. ठीक है. प्रियंक भी कर रहा है अभी. शिवम भी कर रहा है. ठीक है. Giving you 1 more minute. Last 30 seconds quickly. Try to complete this. Yes, Jay. Will you help me for this particular question? Yes, sir. Yes, Jay. Read the question and try to explain. તું થોડીક વાર માટે જય ગુજરાતી સમજાય તને? ગુજરાતી, હિન્દી, ઇંગ્લિશ? હા સર, ત્રણેય. ચાલ. Then you will explain in Hindi. થોડીક વાર માટે લાડવા સર બની જાલ. મારી મિમિક્રી કરવાની છે તારે. ઓકે. મિમિક્રી હો. હા સર, ટ્રાય કરીશ. ઓકે. સર મિમિક્રી તો નહીં થાય, એમને બોલું છું હવે. લે બોલ. નહીં નહીં, રેવા દે ઉપર. Who is good with the mimicry in this particular lab? Meghna? Who is good? કેની પાસે સ્કિલ બહુ Sir, સારી I છે? don't know. મેઘના આજે ઉદાસ ઉદાસ છે. મેઘના, everything is good at your end? No, sir. Yes, sir. No sir, yes sir, क्या बोल रही है? ठीक है Sir, तू? everything is fine. घर पे सब ठीक? हाँ पापा सर, मम्मा ठीक हो. हर कोई? हाँ सर, सब ठीक. तो क्यों वो हाँ सर, सब ठीक है. हाँ सर.
लो लो साउंड कर रही है आज। ऐसे ही सर, पता नहीं, ठीक ही है। ठीक ही है, ओके। चलो, कोई है बंदा जो मेरी मिमिक्री कर पाए द वे आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन? यस, तू कर सर सकता है। अर्पित को बोलो, अर्पित को। अर्पित, सर अर्पित, अर्पित। अर्पित आजा बेटा, अर्पित आजा स्टेज पे। अर्पित मिश्रा, ओ मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी। अब अगर वो सुनाई दे, सुन रहा होगा तो भी नहीं आएगा। अर्पित बोल रहा है सर आई एम एब्सेंट। मिश्रा जी कमेंट कर रहे हैं सर आई एम एब्सेंट। ठीक है, तो कोई नहीं करेगा और क्या है, वही चलने दो तो फिर ठीक है। भवदीप तू है? भवदीप बात ही नहीं करा आज सुबह से। शिवम, शिवम, एक दूसरे के ऊपर मत डालो। कौन कर सकता है, दूसरे का नाम मत लो। तू बता, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ, वो तो सर अर्पित ने बोल अर्पित ही कर दिया ना कि सकता है अर्पित बहुत अच्छे से वो। मतलब अर्पित ने। क्लास में सर सबकी मिमिक्री करता है। हाँ अर्पित, ऐसा है, एक बार अनम्यूट तो कर अपने आप को अर्पित। अर्पित, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अर्पित, अब तो मैं तेरी एब्सेंट लगाऊंगा, आजा। अर्पित, आर यू देयर और नॉट? हाँ ना, कुछ बोल दे भाई, भारत माता की जय बोल दे, इनकलाब जिंदाबाद बोल दे, कुछ तो बोल दे। देखिए, ये सर ठीक नहीं है। है, वो 15, जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे। हाँ 15 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तेरी वेट कर रहे हो, तू कुछ बात नहीं करेगा, तू बोलेगा नहीं, कमेंट नहीं डालेगा तो कैसे चलेगा? नहीं बोल वही सकता तो तो लिख दे। सर। नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता तो बोल दे, इट्स ओके। देख, अब इसको मैं याद रखूंगा अर्पित। ठीक है, चल जय, तू ही कंटिन्यू कर बेटा। जय। यस सर। ओके। जैसे कि इधर लिखा है द एवरेज सीजनल रेनफॉल इन अ प्लेस इज 16 इंचेस, मतलब कि मीन इधर 16 इंचेस है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 4 इंचेस। तो बस वही पुरानी फॉर्मूला, एक्स माइनस म्यू अपन। वो फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्यों चाहिए हमको वो फॉर्मूला? सर इधर जेड की वैल्यू दी हुई है और टेबल में एक्स नहीं चाहिए। नहीं, इधर एक्स दिया हुआ है, हमको टेबल में क्या चाहिए बेटा? जेड। जेड चाहिए, इज इट ना? तो वी नीड टू ट्रांसफॉर्म एक्स इनटू जेड। जेड। इस फॉर्मूला से मिलेगा एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, इज इट? गुड। यस। तो एक्स जब 20 है तो मुझे मेरा जेड आ रहा है 1। आगे बता। और 24 पे 2। अगर मैं 24 ले लूँ तो जेड आएगा 2, करेक्ट। अब हमको क्या चाहिए? ये चाहिए। अब x जब 20 है तो z क्या है बेटा? 1। x जब 24 है तो z क्या है? 2। अगर उसका मैं स्केच निकालूं तो कुछ ऐसा होगा, इज इट? सो वी आर इन नीड ऑफ द एरिया बिटवीन 1 एंड 2, इज इट? यस सर। तो चल उसके लिए फॉर्मूला दिखा, चल कैसे करेंगे हम, बता दे। फॉर्मूला फॉर्मूला मीन्स वो वी विल राइट डाउन दैट प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज लेस देन z इज लेस देन 2। अब वो 1 से 2 कैसे निकालेंगे? टेबल तो नहीं देगा ये, टेबल तो बीच का कोई एरिया नहीं देता। टेबल क्या देता है? 0 से 1 देता है, 0 से 2 देता है। 1 से 2 तो टेबल नहीं देगा, तो वो उसके लिए क्या करेंगे वो बोल दे। सर, पहले 0 से 2 निकालेंगे और उसमें से 0 से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट है, देख यही तो करेंगे हम। क्या आया था तेरा आंसर? यस सर, यही आया था। 135। परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो होपफुली सभी को समझ में आ रहा है जो भी यहाँ पे अटेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए, जाने दीजिए मुझे नेक्स्ट पे।
Hence, the probability that the rainfall in that place will be between 20 to 24 inches is 0.1359. Correct. अब नेक्स्ट जाने से पहले 2-3 नोट है, वो डिस्कस करने के बाद एक एग्जांपल बाकी है. सो ओके, थोड़ा सुस्त लग रहे हैं हर कोई, रुक जाओ.